Hello students, welcome to my channel Study with Jaggi. Beta, last time we were doing the chapter 3 days to see. Okay, unit 1, chapter 3rd, 3 days to see. We have done reading the chapter as well as explained it. Today we will be doing the exercises. Okay, so come on, let's start. Today almost we would complete the chapter exercises. Okay, come on page number 28. Okay beta, yes, this is page number 31. Okay, page number 31. If you all remember the story, what was it all about? Anyone who can tell? Beta, this was a story, we can say a touching narrative of a girl, ठीक है, who cannot see, and that invites, वो हमें क्या बताना चाहते हैं? What message? That learners should appreciate their senses and value the beauty of the world around them. Okay, so overall this was the message that this lesson give us today. Okay, so now come on page number 31. Okay, so let's start. Let us discuss. Work in pairs. Identify the statements that are true from the ones given below. Okay beta, share your answers with the teacher. So first statement, the author expresses a deep longing to experience the world through the sense of hearing. I don't think so. So this would be false. Okay, why? Because beta, here the author expresses a deep longing to experience the world through the sense of sight. देखने की क्षमता, ठीक है, उसी से वो देख पाएगा ना, not from hearing. ठीक है बेटा. The author would like exploring the city only to observe how people are suffering. Do you think so? Suffering की तो कोई बात नहीं हुई, I think. So this will also be false. ये statement भी false है. Why? Because the author explores the city to observe various aspects of people, their lives, including smiles, determination, and not just suffering. ठीक है, हाँ वो देखना चाहता था कि कैसे लोग इस सिटी लाइफ में सफ़र करते हैं, बट नॉट ओनली सफरिंग बट ऑल्सो their lives, how they are moving on, including their smiles and determination. ठीक है. So third statement, the author would spend the first day seeing the people whose kind-heartedness and friendship have enriched her life. This is true. क्योंकि जब वो पहले दिन का वो डिसाइड करती है, दैट इज अबाउट काइंड हार्टेडनेस एंड फ्रेंडशिप. ठीक है. The author acknowledges that even in 3 days she would not be able to see everything. Yes, ये भी पता था कि वो 3 दिनों में कितना कुछ देख पाएगी. ठीक है. This is true. Because the author here acknowledges that even in 3 days she would not able to be see everything. बेटा 3 दिन तो बहुत कम है, बट फिर भी उसने उन 3 दिनों को डिवाइड करके जो चीज़ें उसको प्रायोरिटी लग रही थी उसके अकॉर्डिंग उसने देखने की कोशिश की. फिफ्थ, द ऑथर फील्स दैट एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मेरली बाय द सेंस ऑफ टच. नो, नॉट ओनली टच बेटा, दिस इज रॉन्ग. Okay, why? Because author finds joys in touch. She believes sight must be the most delightful sense. जो देखने की क्षमता है, ठीक है, sense of sight, that is much more important because you are able to see through your eyes.
6 देखिए बेटा, द ऑथर एडवाइजेस दोज हु कैन सी टू अप्रिशिएट एवरी मोमेंट एज इफ दे माइट लूज देयर सेंसेस टुमारो। बिल्कुल बेटा, इफ यू सी इन द लास्ट एंड दिस लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया था कि हमें अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो भी हमें मिले हैं, उनका हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अराउंड जो हमारे एनवायरनमेंट है, नेचर है, लोग हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए विदाउट कंप्लेनिंग, बिकॉज हमें नहीं पता भी कल हमारे साथ क्या हो जाएगा, या हमारे पास ये सेंस ऑर्गन्स नहीं यूज हो कर पाएंगे, ठीक है। तो द ऑथर एडवाइजेज दोज, उनको एडवाइस कर रहा है, हु कैन सी टू अप्रिशिएट एवरी मोमेंट, वो जितना भी एवरी मोमेंट है जो आपके, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करें, और ऐसे अप्रिशिएट करें कि दे माइट लूज देयर सेंसेस टुमारो, ठीक है। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। 7 देखिए बेटा, on the third day the author would like to observe people in their daily lives and understand their experiences। true, वो सिटी लाइफ ऑब्जर्व करना चाहता था, लोगों को उनकी डेली लाइफ्स कैसी चलती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को समझना चाहती थी, ठीक है। सो ऑन द थर्ड डे द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइव्स एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस। बेटा ये जितनी भी एक्सरसाइजेज होती है ना, दे आर फ्यू आर ट्रिकी, रेस्ट इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ गई सो यू आर एबल टू डू दैट, ओके। जैसे आपके कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं पेपर में, अगर आपको पैराग्राफ जो अनसीन पैसेज दिया जाता है, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो यू आर एबल टू सॉल्व दोज 5, 10 या 8 क्वेश्चंस, ओके। कम ऑन नेक्स्ट पेज बेटा, 32 पेज नंबर। See here, it's the table is given below with what Helen Keller wanted to do on the 3 days if she had sight। तो हमें वो पहले फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे ये सब डिस्क्राइब करना है। आई थिंक स्पेस इज लेस, सो मैं अगर लिखना चाहूँ तो बेटा छोटा छोटा करके लिख सकती हूँ, बट यू वॉन्ट बी एबल टू सी, ठीक है बेटा। कई बार ना मुझे बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं कि आपकी जो वीडियो है वो थोड़ी विजिबिलिटी मतलब थोड़ा सा कम है। तो बेटा वो ना, आप जब भी आप यूट्यूब पे जब ये वीडियो देखो तो वहाँ पे आपके ऊपर एक बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर पे सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करोगे, हाई मतलब वीडियो, ठीक है, जैसे 720, 1080, ठीक है, 1080, तो वो वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो ये पिक्चर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, हाई पिक्चर क्वालिटी, ठीक है। सो वो आपको अच्छे से विजिबल भी होगी। सो बेटा हेयर सी, just for you I have taken one sheet, or you can take any notebook page, just fold it from here, okay, so that when you paste this side, when you are reading the question, you are able to see the answer on this side, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये आपने पेस्ट पूरा नहीं करना, ये जो फोल्डेड पार्ट है इसी को पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। See, you did it, I will paste in the end, okay, before I will write here। So day 1 I have to write, I have to complete it first बेटा, ठीक है। See the people, know her friends, वो पहले दिन क्या करना चाहती, लोगों को देखना चाहती थी, know her friends from the feel of their faces। तो बेटा here I will do second, ठीक है। डे 1, ठीक है। तो जो आपके वो डैश डैश हैं या डॉट्स हैं उसको आप ऐसे कर दो कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। तो ये है, यू विल राइट फील ऑफ देयर फेसेस हुज काइंडनेस एंड companionship have enriched her life, ओके बेटा। डे 2,
तो बेटा ओवरऑल अगर आपको डे 1, डे 2, डे 3 के बारे में पता, यू वुड बी एबल टू आंसर दी ऑल दी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे अराइज विद द डॉन, ऑब्जर्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट, कैसे नाइट टर्न करती है इनटू डे। ओके, विजिट, सेकेंड में वो विजिट क्या कहाँ करना चाहती थी, म्यूजियम। टू सी अर्थ्स हिस्ट्री एंड मैन्स प्रोग्रेस। ओके बेटा, देन डे 3 ये हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं बिकॉज वी हैव नॉट गिवन द लाइन फ्रेज फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। सो डे 3 वो क्या करना चाहती थी, ऑब्जर्व people in their daily lives, understand their experiences, understand their experiences by sight, explore the workaday world. ओके बेटा, जस्ट हैव अ लुक क्लियरली, देखिए बेटा। ओके, बिकॉज द क्वेश्चन वॉज कि आपको ये टेबल कंप्लीट करना है विद वॉट हेलन केलर wanted to do on the 3 days if she had sight. ओके बेटा, yes. So third question देखिए बेटा, the author says that you need eyes to be able to see the true self of a person. Therefore, she refers to the eye as window of the soul. How is the narrator able to understand the feeling of a person? देखिए यहाँ पे ऑथर बोल रहा है that you need eyes to be able to see. Obviously you need eyes, तभी आप देख पाओगे the true self of a person. ठीक है, Therefore she refers to the eye. तो वो रेफर आई को कैसे कर रही है, एज विंडो ऑफ द सोल. सो हाउ इज द नरेटर, जो नरेटर है, जो स्टोरी सुना रहा है, एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ ए पर्सन. ठीक है, सो हेयर वी कैन राइट थर्ड the narrator, though unable to see, understand the feelings of a person, through her sense of touch, by gently tracing the contours of a person's face. Okay, she can
detect emotions like joy, sadness और वरी। तो बेटा ये क्या कह रहे हैं कि जो नरेटर है ना वो अनएबल टू सी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन थ्रू हर सेंस ऑफ टच। तो ये हमें फीलिंग्स हम टच करके नहीं फील कर सकते बाय जेंटली। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं वो टच करके फील करते हैं, ठीक है। कंटूर्स ऑफ ए पर्सन फेस शी कैन डिटेक्ट इमोशंस लाइक जॉय, सैडनेस और वरी, ठीक है। तो वो नहीं कर पाते, ठीक है, इफ दे आर नॉट एबल टू सी जस्ट थ्रू द सेंस ऑफ टच या एबिलिटी टू टच। सो ये क्लियर नहीं हो पाता उनको, ठीक है। तो इसलिए वो फर्स्ट डे यही बोलते हैं कि मैं फील करना चाहती हूँ ये इमोशंस को देख के, ठीक है। देखिए बेटा कंप्लीट कर लो साथ साथ। अगर वो देख पाएगी आंखों से, सो दिस कनेक्शन थ्रू हर आईज अलाउस हर टू, वो इंटरप्रेट कर पाएगी, समझ पाएगी, वो इंटरप्रेट expressions and form meaningful insights about others। ओके बेटा। बेटा अगर आपकी हैंडराइटिंग छोटी है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड तो बेटा वो आप यहाँ पे स्पेस जो ऊपर दी हुई है यहाँ पे आप कर सकते हो, इधर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यू कैन पेस्ट अ पेज, ओके, कि आपका जब एग्जाम्स हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बेटा अब ये करेंगे हम वही एक्सट्रैक्ट्स जो मैंने आपको बोला है कि आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, तो हर चैप्टर में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आई वुड से डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओके बेटा। I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. तो बेटा वो जस्ट टेलिंग अबाउट हर सेंस ऑफ टच बिकॉज शी इज़ ब्लाइंड। तो वो क्या क्या ऑब्जर्व कर सकती है, ठीक है, अबाउट नेचर, अबाउट बर्ड, लीफ, एवरीथिंग। सो व्हाट डज द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ सिंबलाइज, ठीक है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हार्मनी, बैलेंस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है बेटा, ब्यूटी ऑफ नेचर। सेकेंड देखिए,
List two phrases from the extract that describe the texture of objects in nature. Objects in nature. Nature के बारे में बात कर रहे हैं, तो obviously this would be the smooth skin of a silver birch, ये हो गया एक. The rough shaggy bark of a pine. ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं, तो you can write here 2. ओके, तो ये दो फ्रेजेस हैं. ठीक है. थर्ड देखिए, कंप्लीट the sentence appropriately. The phrase awakening nature after her winter sleep refers to. तो सोचिए इसका आंसर. To the arrival of spring. विंटर्स के बाद क्या आता है? स्प्रिंग सीजन. Arrival of spring when nature comes back to life. Okay, after the cold period of winter. ठीक है बेटा. ओके, लुक केयरफुली. बेटा सेकंड का हमने यहाँ पे लिखा हुआ आंसर. ठीक है, जो बॉक्स में लिखना था. थर्ड का वी हैव रिटन इट है. ठीक है, रेस्ट वी हैव सॉल्व्ड हेयर ओनली. ठीक है, जस्ट सी केयरफुली ऑल द आंसर्स. अगर आपको वीडियो अच्छे से नहीं दिख पा रही होगी तो बेटा अपनी सेटिंग्स पे जाना, राइट साइड कॉर्नर पे, तो वहाँ पे हाई क्वालिटी वीडियो पे क्लिक कर देना. ठीक है, तो आपको ये पिक्चर या आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से दिख जाएगी. ठीक है. सी बेटा, मैंने इस पेज को पेस्ट भी कर लिया है जैसे मैंने आपको बताया था. ठीक है, थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और उसकी साइड पे आपने फेविकोल लगा देनी है. बिकॉज लाइक दिस योर पेज या योर स्पेस ऑन द पेज कैन बी यूज फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, एंड योर बुक्स ऑल्सो लुक नीट एंड टाइडी. सो नाउ वी वुड बी डूइंग द सेकेंड extract given on page number 32. Okay, so let's start. The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pageant of man's progress and so I should go to the museum. तो ये हमें म्यूजियम वर्ड से ही पता लग रहा है ये सेकेंड डे के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे वो नाइट इनटू डे ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है. सो लेट्स स्टार्ट. ये वही पेज है जो मैंने पेस्ट किया था. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. यहाँ पे द वर्ड, जो वर्ड है थ्रिलिंग, हैज़ बीन यूज विद मिरेकल. ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे थ्रिलिंग मिरेकल, तो वो कह रहे हैं जो वर्ड थ्रिलिंग है उसको मिरेकल के साथ यूज़ किया गया है. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग. तो थ्रिलिंग का हमें देखना है कि किसका वर्ड जो है मैच नहीं कर रहा है. तो एनीबडी हु कैन टेल मी. नॉलेज. थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, थ्रिलिंग टेल हो सकती है, मतलब मीन स्टोरी, थ्रिलिंग एडवेंचर हो सकता है, बट नॉलेज नहीं हो सकती यहाँ पे इस वर्ड के साथ. ठीक है, सो जो आपका आंसर है वो दैट इज योर सी ऑप्शन, नॉलेज. वाई डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज स्लीपिंग अर्थ. तो वो कह रहा है कि जो अर्थ को स्लीपिंग अर्थ क्यों बोला गया है.
तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू symbolize the state of rest. ठीक है, एंड ऑब्वियसली बेटा स्लीपिंग अर्थ है तो मतलब कि स्टेट ऑफ रेस्ट पे है. ठीक है, एंड इनएक्टिव है. इनएक्टिविटी बिफोर dawn transforms before dawn transforms into life and activity. बेटा दिख रहा है ना सभी को? देखिए बेटा क्लियरली. थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन. रीजन देना हमें और कंप्लीट करना ये सेंटेंस. द राइटर विशेस टू डेडिकेट द डे टू ए ब्रीफ लुक एट द प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ल्ड बिकॉज इट गिव्स her a chance to witness the progress of humanity and the history of the earth. ठीक है, सो देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द राइटर यूज शुड मल्टीपल टाइम्स इन द एक्सट्रैक्ट. तो वो जो मल्टीपल टाइम्स है वो इसने क्यों यूज किया हुआ है? इसका आंसर क्या होगा बेटा? शुड मल्टीपल टू एक्सप्रेस. क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? टू एक्सप्रेस इंटेंट, पॉसिबिलिटी, होने की संभावना, एंड a sense of ideal action. ओके बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन द नोटबुक. ओके बेटा, सो नाउ कम ऑन पेज नंबर 34 क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, जो पेज नंबर 33 पे थे वो हम नोटबुक में करेंगे. So let us start here. Let us learn. Sensory words are descriptive. They describe how we experience the world, how we see, hear, smell, taste or feel something. Complete the following table with sensory words from the text in column 2. For the 5 senses in column 1, add new words in column 3. ठीक है, तो ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं. What you see, panorama, vibrant, radiant. Okay बेटा, what you hear, music, harmonic और echoing. What you smell, perfume, वो fragrant हो सकता है, खुशबूदार, फ्रेग्रेंट, zesty. ये भी बेटा इसी का मतलब है. ठीक है, अच्छी खुशबू. What you taste, relish, sweet, मीठा,
and tangy. Okay. What do you feel? Rough, silky, prickly, जो चुभता है. ठीक है बेटा, डन. सो बेटा जो ये नीचे दिए गए हैं वर्ब फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स. सो ये आपको अंडरलाइन. I should divide the period into 3 parts. तो यहाँ पे जो आपका वर्ब होगा वो should divide. ठीक है. On the first day I should want to see, should want. The next day I should arise with the dawn. I should behold with awe, should behold. ठीक है. The words you have underlined are a combination of 2 verbs. तो हमने जो underline किए वो combination of 2 verbs हैं. Each of these sentences should is the model verb. तो वो suggestion दे रहा है कि you should do this work, you should work hard. तो वो आपको suggestion दे रहा है, वो model verb है. And second verb जो divide, want, arise, behold है वो main verb है. ठीक है बेटा. So जो model verbs are auxiliary verbs that express necessity, possibility, permission or ability. They are used before the main verb to give additional information about the function of the main verb. So common modal verbs include कौन कौन से होते हैं? Can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought to. तो यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिफाई करने हैं मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. चूज द फंक्शन दे एक्सप्रेस फ्रॉम दोज गिवन इन दी बॉक्स बिलो. तो यहाँ पे बेटे 2 आंसर्स देने हैं एक तरह से आपको. कैसे कि एक तो आपको बताना है कि मॉडल वर्ब कौन सा है, ठीक है, और ऊपर से ये बताना है कि वो जो वर्ड है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है. जैसे यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस. यहाँ पे हमें पता लग रहा है वो कैन है. ठीक है, तो वो कैन क्या शो कर रहा है? एबिलिटी, कि तुम्हें वो क्षमता है, एबिलिटी. सेकेंड, दे माइट अराइव लेट ड्यू टू ट्रैफिक. तो यहाँ पे माइट मतलब पॉसिबिलिटी है. ठीक है बेटा. थर्ड देखिए, शी मस्ट फिनिश हर होमवर्क बिफोर डिनर. तो मस्ट मतलब नेसेसरी है, नेसेसिटी है. They ought to apologize for their mistake. Ought to means moral obligation. He would like to have some lassi please. Would मतलब polite request. अब जैसे आप करते हैं मैम may I go to drink, या would you जैसे बोलते हैं ना may I go to drink water, मैम I would like to गो आउटसाइड, या कुछ भी जो हम पोलाइटली बोलते हैं. ठीक है, तो हम वहाँ पे वुड यूज़ करते हैं. तो पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो वी शुड यूज द वर्ड वुड. ओके बेटा. So beta, with this our exercises are completed, and in the next video we will be doing the question answers. So thank you everyone. Beta, do like, share and subscribe my channel Study with Jaggi. Okay beta, take care.